Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are finally back again with another solution video for weekly contest 479 which happened I think last week. So yep, we are here. So along with that I have a small announcement like recently I got my recent merch for my channel which is basically for its code time channel. I'm actually wearing it right now. You can actually see. I'll just keep it on display for everyone. Uh, Yep, this is how our merch looks like. So we haven't started, making it on a mass level or like for a lot of people. I basically decided, we'll release the merch for everyone when we reach at least 10,000 subs. Because I think at this point of time there is no point of releasing merch, but it's just a custom made. It's for the channel. If you like, you can actually drop a comment or suggestion. If you want the merch, so you can actually contact me directly for it. But yeah, on a global level, I mean, when it's completely in the market, then it be basically around when we have reached around 10,000 subs. So this was a small announcement regarding the merge. And yep, now we can actually go towards our main focus, which is the weekly contest 479. Great. So this was conducted, I think, last week itself. And it had four problems. Great, great, great. Okay. So yeah, from the very start, to be honest, this contest was actually on the side of it was balanced. It was balanced, to be honest. The questions were on more easier side. So I would say it was more, easy medium. Even the hard question that we had in this contest was not very hard, to be honest. Right? If you have done, a lot of problems on trees and graphs, you would be able to decipher the fourth problem very easily. You'll be able to do it very easily. So I think this contest was more on the easy side rather than being on difficult. But yeah, it was basically from easy to medium, not even medium hard. Okay, not even medium hard. Okay, for the fourth question, you can say it was medium hard. But yeah, I'll basically keep it on medium level. Yeah, so overall contest was basically, some kind of medium. It was not very hard. It was not easy. It was medium. Okay, so I think that makes our discussion clear about how the contest was. Now let's jump to solving each of the questions that we have to do. So let's open the first question. Great. Yep. So the first question we have is sort integers by binary reflection. Okay, let's read the question. You are given an integer array nums. The binary reflection of a positive integer is defined as the number obtained by reversing the order of its binary digits, ignoring any leading zeros, and interpreting the resulting binary number as a decimal. तो बाइनरी रिफ्लेक्शन एक पॉजिटिव नंबर क्या क्या कह रहा है कि वी आर गिवन एन एरे व्हिच कंटेन्स इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और बाइनरी रिफ्लेक्शन क्या होता है किसी भी एक नंबर का सो बेसिकली किसी भी नंबर को उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के बाद इफ यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इफ यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द बिट्स ठीक है जैसे अगर 100 है 100 है तो इसको आप 001 कर दो राइट अगर 110 है तो 011 कर दो तो दैट इज बेसिकली टेकिंग द रिफ्लेक्शन अलॉन्ग मिरर अब मिरर के अलॉन्ग अगर रिफ्लेक्शन है तो क्या होता है वो चीजें रिवर्स हो जाती है राइट सो इट्स बेसिकली रिवर्सिंग ऑल द बाइनरी बिट्स इन द रिप्रेजेंटेशन ठीक है एंड सिंपल सी बात है वी नो दैट लीडिंग जीरोस विल नॉट मेक अ डिफरेंस ठीक है अगर कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर लेफ्ट साइड में उसके लेफ्ट मोस्ट बेसिकली एमएसबी के साइड पे आप जीरो लगा भी दोगे तो इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जीरो कम्स ओनली व्हेन इट्स ऑन द राइट साइड नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर राइट सो या उसके बाद जो भी नंबर रिवर्स करने के बाद जो भी बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा यू कन्वर्ट इट बैक टू डेसिमल नंबर यू कन्वर्ट बैक टू डेसिमल नंबर एंड देन यू हैव टू सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द बाइनरी रिफ्लेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ओके सो आपको बेसिकली एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू दैट रिफ्लेक्शन वैल्यू जो आती है एंड इफ टू डिफरेंट नंबर्स हैव द सेम बाइनरी रिफ्लेक्शन द स्मॉलर ओरिजिनल नंबर शुड अपीयर फर्स्ट ठीक है अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सेम बाइनरी रिफ्लेक्शन आता है सो व्हाट डू यू डू व्हाट हूसोएवर इज अ स्मॉलर एलिमेंट यू टेक इट फर्स्ट लाइक फॉर एग्जांपल 4 और 8 का अगर रिप्रेजेंटेशन लें तो 4 is what 100. If you reverse it, it becomes 001. So it's at the end it's 1. Similar way, if you take 8, 8 is what 100, and if you convert it, reverse it, it becomes 0001, which is again 1. So 4 and 8 both have a same binary reflection, which is 1. But since 4 is smaller than 8, so 4 will come first. So that is basically what the second line says, right? Let's take the first example. We have 454. So 4 is what, as I said, it's 100. So 151 we have. 5 is since it's palindrome, that's why 5 remains 5. So basically we see 115 should be the order of the reflection. So according to 1, we have basically 4. And this one will also contribute to 4. And 5 is 5. So 445 is the final answer. So I think this makes the first question very clear that what we have to do. Let's read the constraints. The constraints are as follows. The size of the array is basically 100, very small, and the numbers inside the array can be big. It is 10 to the power of 9, not an issue, since we are going to extract the bits of the number. So if we have, 10 to the power of 9, so if you take log 2, log 2 would be around what? Log 2 would be around 31 or 32, right?
So that is simple, not an issue. Extracting bits is a very simple thing, right? So this is basically what we want to do. So one thing that should be very clear in your mind as of now, कि भाई हमें sorting करनी है, sorting करनी है किसी भी टाइप की। अब sorting आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला है कि आप प्रायोरिटी क्यू यूज करो। प्रायोरिटी क्यू सॉर्ट कर देता है। प्रायोरिटी क्यू में आप एक स्ट्रक्ट बनाते हो और एक बूल कंपेरेटर बनाते हो, ठीक है। एक कंपेरेटर फंक्शन बनाते हो प्रायोरिटी क्यू में, और उससे कंपेयर करके बेसिकली आप सॉर्ट कर लेते हो। दैट इज फर्स्ट वे। सेकंड वे इज कि जो आपका इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है, I'm specifically talking about C++. Baki, in Python too, not an issue. What you can do is basically, first get the binary reflection of each number, put it in a dictionary or put it in a list, and then you can basically sort that list, using the lambda function on the basis of the binary reflection. तो कोई दिक्कत नहीं, that is for Python, right? ऐसे ही आप सी उसमें जावा में भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, सो सी प्लस प्लस में आप बहुत आराम से सॉर्टिंग फंक्शन अपना कस्टम सॉर्टिंग फंक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो। So what we'll do, I think binary reflection find karna is not a very difficult task. So I just directly go to the solution, because the brute force solution is here actually the direct solution, right? So first what I've done is basically just written sort nums.big and nums.end, and then I've given my custom comparing function, right? Which is basically for sorting, custom sorting function, right? And just return the nums. Now let's go to the compare function. So basically, for specifically in C++, I'm talking about when you create a custom sorting function, you basically declare it with static. Okay, static keyword. So first of all, what do you get? You get the binary reflection. Okay, you get the binary reflection. Binary x. Okay, we'll also go to binary reflection. Binary reflection basically binary reverse to that function. But first of all, let's cover this. So if the binary reflection is equal, then whosoever is smaller should be kept first. But in case if they are not equal, then whosoever has smaller reflection should go first. So that is the logic here. Right. Now, if we go to the binref function, so how do we basically get the binary reflection? What do you do? First of all, extract the bits. Okay, so now a lot of people would have confusion कि भाई 31 बिट्स का नंबर होता है, तो उसका मतलब अगर हम रिवर्स करेंगे तो भाई, तो यहाँ जो जीरो प्लेस पे वन है वो भाई 31 पे चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने बिट्स आपको दिए हुए हैं आप उसमें ही काम करोगे। लेट्स से आपको 3 बिट नंबर दिया हुआ है, देन बेसिकली यू रिवर्स इन द रेंज ऑफ 3 बिट्स ओनली। ये नहीं कि 31 बिट्स यूज कर ली, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सट्रैक्ट द बिट्स, राइट? एंड वी नो कि एक्सट्रैक्टिंग द बिट्स जो होता है वो पीछे से होता है, दैट्स व्हाई इट्स ऑलरेडी इन द रिवर्स ऑर्डर। सो नाउ वी जस्ट हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, जो सबसे पीछे बिट था, नाउ दिस विल गेट द मैक्सिमम वेटेज, राइट? सो बेसिकली द जीरोथ बिट विल नाउ गेट द वेटेज ऑफ mth bit. ओके, mth लेट्स से उसका एमएसबी जो था नंबर का, एमएसबी बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज m। देन बेसिकली जो जीरोथ बिट पे जो भी था वो जीरो हो या वन हो, that will now contribute to 2 की power m, right? It's basically mth bit, or m minus, you can say m minus 1, right? So basically हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, and we do it in the reverse order. Okay, we get the contribution of each bit in the reverse order, right? जैसे जीरो बिट वाला जो है उसका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पर जीरो हो वन हो उस समय मतलब नहीं है, राइट? अगर इसको रिवर्स करने पे जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जीरो इंटू टू की पावर m माइनस आई माइनस वन हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, दैट विल बी जीरो। अगर वन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल, राइट? एंड दिस वे विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपल, इट्स n log n, डायरेक्टली n log n, क्योंकि अगेन सॉर्टिंग में n log n टाइम ही लगता है, राइट? जो कस्टम कंपेयरिंग फंक्शन है, ये आपने देख लिया, दिस आल्सो टेक्स log n टाइम, बेसिकली लॉग, नॉट इवन log n टाइम, इट्स बेसिकली log ऑफ मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, यू कैन से। बट या स्टिल ओवरऑल यू कैन से इट्स n log n। ओके, ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड प्रॉब्लम, व्हिच इज we have largest prime from consecutive prime sum. Okay, इस क्वेश्चन में आई एम पर्टिकुलरली सेइंग दिस, रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली टू टाइम्स, टू थ्री टाइम्स, क्योंकि इफ यू रीड इट वन टाइम देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या पूछा गया है। रीड इट अगेन, ओके, रीड विद मी। यू आर गिवन एन इंटीजर n, आपको एक इंटीजर n दिया हुआ है, राइट? Return the largest prime number less than or equal to n that can be expressed as the sum of one or more consecutive prime numbers starting from number 2. इफ नो सच नंबर एग्जिस्ट, रिटर्न जीरो। सो बेसिकली आपको एक नंबर दिया हुआ है, एन इंटीजर एन दिया हुआ है, एंड आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर रिटर्न करना है दैट इज लेस देन इक्वल टू एन, सच दैट उस प्राइम नंबर को वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम टू। सो फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक टू है, तो टू इटसेल्फ इज ऑल्सो प्राइम नंबर, उसका सम भी कॉन्जिक्यूटिव के फॉर्म में टू ही है। लेट्स टेक थ्री। थ्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, वाई? थ्री इज अ प्राइम नंबर, बट एट द एंड क्या हम थ्री को कॉन्जिक्यूटिव सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग विद टू? No, we can't, right? Then let's go to 5. When we do go to 5, it is basically 2 plus 3. So we can see 5 is a prime number itself, great, and 2 plus 3 both are prime numbers and both are consecutive starting with 2. So हमें दो कंडीशन देखनी है कि हमारा जो फाइनल नंबर है जो भी लेस देन इक्वल टू n आएगा, that should be prime, and that should also be the sum of consecutive prime number starting from 2, राइट? दीज आर द टू थिंग्स टू क्लियरली फोकस ऑन, क्योंकि लोग सोचेंगे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, बट ये फोकस करना भूल जाएंगे कि हमें जो एंड में नंबर चाहिए वो भी प्राइम होना चाहिए, राइट? इनको जनरली ट्विन प्राइम्स भी कहते हैं। ओके,
not twin primes. They're actually called, I think, complete prime. Yeah, complete prime. They are called as complete prime numbers. या सो अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है n से छोटा, तो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट रिटर्न जीरो, नॉट एन इशू. लेट्स गो टू फर्स्ट टेस्ट केस. फर्स्ट टेस्ट केस वी हैव लाइक n इक्वल टू 20. सो 20 के बीच में आप सारे देखने की कोशिश करते हैं कॉम्बिनेशन. द फर्स्ट इट्स 2 इक्वल टू 2, देन वी हैव 5, देन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वी माइट हैव डायरेक्टली 17. So 2 plus 3 plus 5 plus 7 is 17. If you do 2 plus 3 plus 5, it's what, 10. But 10 is not a prime. 10 is not a prime. That is why we can't take 10. So directly we go to 17 because 17 is also a prime and it is being expressed as sum of four consecutive prime numbers starting with 2. So ये हमें फाइंड करना है. And the constraint is what? The value of n can go up to the power of 5. Not an issue. इसमें भी brute force approach है. Okay. But यहाँ logic का थोड़ा वो issue है. So what will happen if you try to find out key for each number? So basically the naive approach is what? You start from n. Okay, you start from backwards, basically starting from n and keep going backwards. And for each number in the range from n to 1 or up to 2, you basically start checking कि क्या ये number prime है. At the same time, is it sum of consecutive prime numbers, which will actually take a lot of time, जो कि ये नहीं चलेगा, जो कि नहीं चलेगा. So what should be the optimized approach? The optimized approach basically lies in the pre-computation. अब सिंपल सी बात समझो कि what at the end we do we want. At the end जो भी हमें नंबर चाहिए, that should be a sum of consecutive prime numbers, right? याद रखो हम नंबर्स का सम करके अपना नंबर निकालने वाले हैं एंड में, राइट? सो दिस मीन्स सम कितनी जल्दी इंक्रीज होता है. as you might have read the formula, basically sum of consecutive numbers क्या होता है, n into n plus 1 by 2 होता है. Prime numbers are lesser in amount, but still ये जो sum वाले functions होते हैं where we are basically taking what, consecutive sums, right? So basically जो इस क्वेश्चन में आंसर है, that is what, it is a consecutive sum term, right? पहला टर्म 2 है, उसके बाद डायरेक्टली 5 आया, फिर 17 आया. So you can see it is increasing in a exponential manner, right? So this means कि हर एक नंबर को चेक करना is actually not a very good idea. What we can do is, since n is what, at 10 to the power of 5, so हमें क्या करना है? Let's first of all get some amount of prime numbers. ठीक है, थोड़े prime numbers generate कर लेते हैं, right? 2 से starting from 2. So let's say 2, 3, 5, 7, 11, 13, then 17, then 23, right? So ऐसे numbers कुछ set में generate कर लेते हैं, right? Now what we'll do prefix sums on this particular prime number series, right? हम इस prime number series में क्या करेंगे? अपना क्या कहते हैं, प्रीफिक्स सम निकालेंगे. वाई प्रीफिक्स सम? बिकॉज वी नो हमें यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव सम निकालने को बोला गया है. एट द एंड वट एवर वी वॉन्ट इज बेसिकली अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, राइट? सो इसमें प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हो. सबसे पहले प्राइम एक्सट्रैक्ट कर लिए, प्राइम नंबर जनरेट कर लिए, उसके बाद प्रीफिक्स सम निकाला. एंड आई टेल यू द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट यू एक्चुअली नीड for this problem, given the constraint of 10 to the power of 5, that n is 10 to the power of 5, you actually need only to generate the first, I think, 1000 or 1500, 15 or 1700 prime numbers. The first 1700 prime numbers or 1800 prime numbers would be just sufficient. ओके. ये होता है कंस्ट्रेंट पढ़ने का फायदा. आपने कंस्ट्रेंट पढ़ा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड लॉजिक, आप डायरेक्टली देखते हो कि अच्छा मेरे पास अपर बाउंड कितना है. इफ यू गो एंड जस्ट इवन लेट्स से इफ आई टाइप इट हियर, लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट व्हाट 500 प्राइम नंबर्स. ओके. ओके, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग. ये क्यों नहीं काम कर रहा? इन दैट केस लेट्स ओपन चैट जीपीटी. मुझे थोड़ी पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. Sum of first 500 prime numbers. Let's see what do we get. Mhm. Okay, you can see it's around 824693. 824693, and it is bigger than what? It is bigger than 10 to the power of 5, right? हम तो सम निकाले ना प्राइम नंबर्स का. So you can see अगर आप पहले 500 प्राइम नंबर्स भी ले लोगे ना, so you will be able to get your answer very easily, क्योंकि आपका जो सम आ रहा है that is already bigger than n. ठीक है, तो पहले 500 प्राइम नंबर्स भी जनरेट कर लोगे तो बहुत इजीली बढ़ेगा. पहले 500 प्राइम नंबर्स कहाँ से आते हैं? व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट 500 प्राइम नंबर्स? ठीक है, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको कहाँ से 2 से लेके कौन सी रेंज तक निकालना है. सो यू कैन सी तो द रेंज ऑफ फर्स्ट 500 प्राइम नंबर इज बेसिकली व्हाट, 3569. सो वी कैन सी 3571 इज बेसिकली योर 500 प्राइम नंबर. सो बेसिकली आप एक अपर बाउंड ले सकते हो. ठीक है, और जैसे कि अगर आपने देखा था कि सम भी एक्चुअली 8 इंटू पावर 5 चला गया, तो उससे भी कम एक्चुअली चाहिए. ठीक है, तो 500 से भी कम प्राइम नंबर हमें चाहिए. सो यू कैन एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट जनरेट ऑल द प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू 3000. 2 से लेके 3000 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं, आप उनको जनरेट कर लो. ठीक है, उसके बाद
हमने क्या किया यहाँ पर, अगर n1 है तो रिटर्न 0 करना है। ओके, देन वी मेड स्टैटिक एरे। ये आई थिंक आई हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो जो मैंने लास्ट वीक निकाली थी कि व्हाई डू वी यूज स्टैटिक। इट्स बेसिकली कि इन विद इन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स इफ वी वांट अ वेरिएबल स्टेट्स टू चेंज, ओके, कि उसका वैल्यू जो है वो ग्लोबली रिफ्लेक्ट हो चेंज होने पे, सो दैट इज व्हाई वी यूज स्टैटिक कीवर्ड, राइट। सो व्हाट डू वी डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट द प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर चेकिंग वी नो, प्राइम नंबर चेकिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद वी यूज इन द रेंज 2 3,000। मैंने जैसा कहा कि यू ओनली नीड फर्स्ट व्हाट 400 और 450, 500 भी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए, राइट। सो आई एंड वी नो कि जो पहले 500 नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो इसी रेंज में लाया कर जाएंगे बड़े आराम से। 2 से 3 हज़ार में आपको सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे जितने आपको रिक्वायर्ड हैं एन एन के ऊपर जाने के लिए, टू मेक द सम बिगर देन और इक्वल टू एन, राइट। सो सम पहले नंबर्स निकाले, फिर उनका प्रीफिक्स सम निकाला, एंड देन आफ्टर वी गेट द प्रीफिक्स सम, आफ्टर वी गेट द प्रीफिक्स सम, तब तब ये चेक करना है कि उन प्रीफिक्स सम्स में से कौन सा प्राइम है, क्योंकि रिमेंबर सम ऑफ, पहले क्या प्राइम निकाले, सम ऑफ प्राइम्स निकाला, उसके बाद जो सम ऑफ प्राइम्स है, जो सम ऑफ प्राइम्स आया है, दैट शुड आल्सो बी अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन यही तो कहता है, इट शुड बी अ प्राइम नंबर एट द एंड। सबसे पहले क्या किया, प्राइम नंबर्स निकाले, प्रीफिक्स सम निकाला, फिर चेक किया कि कौन कौन सा इन प्रीफिक्स सम्स में से कौन प्राइम है। उसके बाद उसको फाइनली अपने पीआर टू आर में पुश कर लिया, एंड दिस विल बी कैलकुलेट ओनली वंस। जब भी पहली बार फंक्शन कॉल होगा, दिस विल बी कैलकुलेट ओनली वंस, बिकॉज पहली बार ये वेक्टर्स एम्प्टी होंगे, नेक्स्ट टाइम ये ऑलरेडी इनमें चीजें पड़ी होंगी, दिस विल बी प्री कैलकुलेट प्री कंप्यूटेड, राइट। So for the leaving the first call, for every subsequent call, what will happen? We'll just use a binary search. आपको क्या करना है, अपना नियरेस्ट बताना है, तो n जो है n से जस्ट छोटा, ठीक है, n से जो भी जस्ट छोटा है वो आप देख लो, उसको आप रिटर्न कर दो। अगर मान लो कि अगर n खुद भी एक डायरेक्टली एक प्राइम नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, तो आप पीआर टू ऑफ आईडी रिटर्न कर दोगे, n को रिटर्न कर दोगे, राइट। एंड इफ लेट से कि वो मतलब नहीं है इक्वल, तो दिस मींस लोअर बाउंड जो होता है फंक्शन, वो बेसिकली गिव्स अस जस्ट वन बिगर। सो जस्ट एक छोटा हमको चाहिए, क्योंकि बिकॉज लेस देन इक्वल टू है। सो यहाँ से हमें सिंपल सी लॉग इन टाइम में यहाँ पता लग जाएगा हर एक नंबर के लिए। फॉर द इनिशियल पर्पसेस वी नीड प्री कंप्यूटेशन, सो उसको हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। So this will take around what? If we know that this is constant, but 3,000 still we can say it's around what? 3,000 पकड़ लिया, उसके बाद वो root of I. So let's say 3,000 is m. Let's take it as m. So m root m. Okay, m into root m. That will take basically this time. And this is again the same thing. इसमें तो और भी कम terms होंगे, so not an issue. So we can see it's basically around m root m into log n. m into root m into log n. ओके, पहली बार तो बस m root m लगेगा, फॉर द सब्सिक्वेंट कॉल्स यू नोट इवन नीड m root m, बट स्टिल आई एम इंक्लूडिंग इट एज अवर बाउंड। ओके, इन द फर्स्ट कॉल m root m लगेगा प्री कंप्यूटेशन में, एंड द सब्सिक्वेंट कॉल्स विल बी जस्ट फॉर log n, बट टू गेट एन अपर बाउंड आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग m root m into log n, और वो भी बहुत आराम से चलेगा। m यहाँ पर हमारा 3,000 है, ओके, जस्ट टू स्पेसिफाई इट्स 3,000। ओके, तो अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे 3,000 इंटू रूट 3,000 जो होता है, तो वो भी छोटा ही होता है, नॉट एन इशू। और उसके बाद log m तो आप जानते ही हो, वो 32, वो लॉग इन जो होगा वो और भी कम होगा, क्योंकि जो हमारा पीआर टू एरे है उसमें एक्चुअली में 500 या उससे भी कम नंबर्स होंगे, ठीक है, 500 या उससे भी कम नंबर्स होंगे नियरली। सो वो तो और छोटा है। सो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी। एन इज बेसिकली, मैं यहाँ पर एन इसकी बात नहीं कर रहा था, एन आई वाज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ पीआर टू एरे। ओके, और मेमोरी स्पेस तो आप देख ही सकते हो, वी कैन से इट्स ऑर्डर 3,000 इन द वर्स्ट केस, क्योंकि हम उसका वेक्टर एरे लिया हुआ है। ओके, सो आई थिंक दिस वाज क्लियर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स जंप टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। This was the first interesting question that we had in our contest, which is total score of dungeon runs. Let's read the problem. You are given a positive integer HP and two positive one indexed integer arrays, damage and requirement. Great. There is a dungeon with n trap rooms numbered from 1 to n. Entering room I reduces your health points by damage of I. After that reduction, if your remaining health points are at least requirements of I, you will earn 1 point or you will not earn anything. ओके, सो एक बार इतना मैं समझा देता हूँ। सो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एचपी दिया हुआ है, एचपी जनरली डिनोट फॉर हेल्थ, और आपके पास दो एरे हैं, डैमेज और रिक्वायरमेंट। सो व्हाट डू, दे आर एन ट्रैप रूम्स, एन हमारे पास रूम्स हैं, एन ट्रैप रूम्स हैं, एंड दैट आर एक्चुअली डिनोट बाय द एरेज डैमेज एंड रिक्वायरमेंट। सो व्हेनेवर वी एंटर अ रूम आई, व्हेनेवर वी एंटर रूम आई, our HP basically our health reduces by damage of I. Okay, so whatever HP was, so HP minus damage of I would be our final health HP. And if that final health is greater than or equal to requirement of I, okay, at the ith index जो भी requirement of I है, अगर हमारी जो final health आई है वो उससे बड़ी है, ठीक है, then we get 1 point, then we get 1 point, else we do not get any point, right? Okay, let score of J be the number of points you get if you start with HP health points and enter room J plus 1 n in this order. ठीक है, so basically score of J क्या denote करता है? Score of J is basically a suffix of the array, right? स्कोर ऑफ जे इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ सफिक्स ऑफ द एरे, राइट। अगर आप हेल्थ पॉइंट्स एचपी से स्टार्ट करते हो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जेथ रूम, यानी कि स्टार्टिंग के जो एन माइनस जे रूम से उनमें नहीं जाते हो, डायरेक्टली यू स्टार्ट फ्रॉम द जेथ रूम एंड यू गो टू द nth रूम। ओके, तो उसमें आपको जितने टोटल पॉइंट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्कोर ऑफ जे।
right? Starting from the jth room with the full HP, with the full health HP, right? And you go up to j plus 1 to up to n. So whatever score you get, whatever points total you get, that is basically score of j. Basically the score that you get when you start from jth index, right? Okay. What we have to return is we have to return the score for all indexes. So whatever we had score of j, we have to return it for all indexes, score 1, score 2, up till score n. We have to return the sum of all these scores, right? Remember what score of j is what? Score of j is basically a suffix of the array, right? Again, you cannot skip rooms, you can finish journey even if your health points become non-positive. तो आप रूम स्किप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपका मन किया आपने छोड़ दिया रूम, आप कूद गए, आपको लग रहा है यहाँ पर घटाने में फायदा नहीं है, तब आप किसी और रूम पे जंप कर जाओ उसमें थोड़ा कम डैमेज हो, वो नहीं कर सकते. यू हैव टू गो थ्रू एवरी रूम एंड यू कैन फिनिश योर जर्नी इवन आपका अगर हेल्थ नेगेटिव हो जाए. ग्रेट. लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. फर्स्ट टेस्ट केस में क्या है? एचपी इनिशियली 11 है, डैमेज है 367, रिक्वायरमेंट है 425. ओके. नाउ स्कोर ऑफ 1 क्या है? ओके, लेट्स से मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ. When I start from the first index, my health is 11, right? Damage will be what? 11 minus 3 is what? 8. 8 is bigger than 4? Yep. So we get 1 point. Great. Then with 8 health, we go to 6. 8 minus 6 is what? 2. So 2 is greater than equal to 2. Great. So we get another point 2. So we have total points 2. So now our health has become 2. Then 2 minus 7 is what? 2 minus 7 is minus 5. And minus 5 is not bigger than, minus 5 is not bigger than 5. So here we will not get any point. So score of 1 basically starting from first index, the final score would be 2 points. Right? So you can see score of 1 is 2. In a similar way, if you start from this index, you will get the score of 1. And if you start from the third index directly, you will not get any score at all. Right? कोई भी score नहीं आएगा. Total point is what? 2 plus 1 plus 0, which is 3. In a similar way, we go for all test cases. I think it is very clear what the question is asking. Let's go to the constraints. The value of health, basically the initial HP is goes up to 10 to the power of 9, right? And the damage part basically goes up to, okay. So yeah, so the size of the damage array and the requirement array can go up to 10 to the power of 5. And then the values inside the damage array and the requirement array can go up to 10 to the power of 4. Okay, very normal constraints. ऐसे कोई outliers नहीं है. ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं. The very naive approach for this, I'll open the, yeah. So a very naive approach is basically what? Very naive approach is basically you create every suffix, right? What do you do? You create every suffix and calculate the score, right? But what will the time complexity of this approach? It will be order n square, right? अब हर एक suffix निकालो, basically दो loops लगा लोगे and you'll be able to do it, but it will not going to work because जो size of the array है वो 10 power 5 तक जाता है and it will not work, right? It will not work. तो अब क्या करें? अब हाउ डू वी कैलकुलेट हर एक के लिए स्कोर कैसे निकाल लें? व्हाट कैन बी द अप्रोच? सो अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर अब हम अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करेंगे. हाउ आर वी लुकिंग एट द प्रॉब्लम? इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एवरी सफिक्स, व्हाट डू वी नीड? अच्छा ऐसे समझो, लेट से अगर मैं स्कोर ऑफ जे निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बेसिकली सिर्फ उन इंडेक्सेस से मतलब पड़ता है जो कि इसके पहले आए हुए हैं. ठीक है. अगर मैं स्कोर ऑफ जे निकालना चाहता हूँ, अगर मैं स्कोर ऑफ जे निकालना चाहता हूँ, राइट, तो बेसिकली जो जेथ रूम के बारे में हम बेसिकली ये समझ लो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एवरी सफिक्स और प्रीफिक्स, हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं पर रूम का, राइट. नाउ व्हाट डू वी लुक एट? वी लुक एट हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी रूम्स व्हेन चोजन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ starting point basically means starting room. Starting point can give, can give what? Can give a final health such that the final health is basically greater than requirement of j. Correct. हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि फॉर फ्रॉम हाउ मेनी स्टार्टिंग पॉइंट्स डू वी हैव सच दैट हमें jth जो रूम है उससे एक पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, हमने देखो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है. हम आइडिया ये लगा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरी सफिक्स एंड ऑल, फॉर ईच इंडेक्स j, फॉर ईच इंडेक्स i ले लो, फॉर ईच इंडेक्स i वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्टार्टिंग रूम्स आर प्रेजेंट सच दैट वी कैन अर्न 1 पॉइंट फ्रॉम द ith रूम. बेसिकली अगर ith रूम दिया हुआ है तो कितने ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं सच दैट हमें ith पॉइंट से एक पॉइंट पक्का मिल जाए, और वो पॉइंट कब मिलेगा? तो फाइनल हेल्थ जो होगी वो रिक्वायरमेंट ऑफ आई से बड़ी होगी. करेक्ट. सिंपल सी बात है, राइट. अब ये समझो, सिंपल सी बात है, हम स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो भाई हम अगर आयत रूम की, जैसे आयत रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आयत रूम कितने सफिक्सेस में आएगा? सिंपल सी बात है, जो जो भी इंडेक्सेस, जो भी एलिमेंट्स आई इंडेक्स के लेफ्ट में है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के केस में तो कंसिडर हो सकता है, राइट. हम क्योंकि सफिक्स ले रहे हैं, राइट, सफिक्स ले रहे हैं, तो अगर हमें जे वाला इंडेक्स चाहिए, जे वाला इंडेक्स चाहिए, तो इसका मतलब हम कौन कौन सफिक्सेस लेंगे? जे माइनस वन वाला लेंगे तब उसमें आएगा, जे माइनस टू वाला लेंगे, और ऐसे करते करते स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, राइट. फर्स्ट इंडेक्स से जब हम स्टार्ट करेंगे
तब जाके हमें जो जो पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे फाइनल पॉइंट्स के लिए, राइट। यहाँ पर जितने इंडेक्सेस है दे विल नॉट कंट्रीब्यूट, राइट, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इन फॉर्मिंग दिस दिस रूम फॉर अ पॉइंट, राइट है। हमें इन एलिमेंट से इस रूम के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि सफिक्स जो होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, राइट। सो दिस मीन्स कि हमें बेसिकली इन रूम्स में से पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल स्टार्टिंग रूम्स हैं, राइट, पॉसिबल स्टार्टिंग रूम्स है। नाउ अनदर थिंग, एक और बात समझो, क्योंकि क्योंकि जितने भी डैमेज दिया हुआ है, जो भी डैमेज दिया हुआ है, इट इज ऑल पॉजिटिव। याद रखना, याद रखना कि डैमेज ऑफ आई इज ऑलवेज व्हाट, इट रेंजेस फ्रॉम 1 अप टू 10 टू द पावर ऑफ 4। इसका मतलब हमारा जो डैमेज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा घटेगी, कभी बढ़ेगी नहीं। इन केस अगर ये बढ़ती होती, मान लो फॉर नेगेटिव डैमेज होता, तो नेगेटिव डैमेज के केस में थोड़ा पूरा पूरा पलटफेर हो गया होता। बट इन दिस केस वी हैव बीन गिवन कि डैमेज ऑफ आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसका मतलब हेल्थ हमेशा घटेगी। तो वह समझो, हम अगर ये रेंज ले रहे हैं कि 1 से लेके जे तक, हम ये रेंज ले रहे हैं, राइट, इसकी बात कर रहे हैं। मान लो बीच में कोई ऐसा इंडेक्स है के, बीच में एक ऐसा इंडेक्स है के, सच दैट कि वहां पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द केथ रूम विल नॉट बी एबल टू अर्न अ पॉइंट एट जेथ रूम। दिस इज व्हाट आई मीन। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये बताओ, क्या k-1 k-2 अप टू जो 1th इंडेक्स है, इनमें से किसी में भी पॉसिबल होगा ये चीज? इनमें से क्या किसी में भी पॉसिबल हो सकता है? If let's say k is the room such that we are not able to get uh, get one point in the jth room, ठीक है, k से स्टार्ट करते वक्त अगर k को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, so we go through the series of rooms and finally reach the room j, and if we are not able to get a point from the room j, then what does this mean? This means कि for any previous rooms, इसका मतलब k-1 k-2 up to 1, इन सारे रूम से भी हमको आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा जेथ रूम के लिए, करेक्ट, क्योंकि हमारा डैमेज ऑफ आई पॉजिटिव है। इट्स दिस इज व्हाट एन इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर के बाद के अगर जहां पर अगर मान लो पॉसिबल है, लेट्स से इफ देयर इज अ पर्टिकुलर रूम सच दैट इट इज पॉसिबल कि हम जेथ रूम पे पॉइंट अर्न कर पाए, इसका मतलब वो जो भी रूम होगा उसके जो नेक्स्ट वाला है k+1 k+2, उनसे भी पॉसिबल होगा, राइट। सिंपल सी बात है, सिंपल है। जो इंक्रीजिंग जो प्रीफिक्स सम्स होता है उसी का यहाँ पर टेक्निक है, बेसिक वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, ये ट्रू है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में भी ट्रू ही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सम कम होगा, फिर और सम बढ़ेगा, फिर और सम बढ़ेगा, यहाँ पर सम बढ़ेगा। अब इसके बाद मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां पर सम मान लो ऐसा है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें जेथ रूम में आंसर नहीं मिल पा रहा है। दिस मीन्स व्हाट कि अगर मैं और इसके लेफ्ट में जाऊंगा इस वाले रूम के, तो मुझे और आंसर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द ऑब्जर्वेशन कि हम जो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वाज आवर व्हाट वाज द व्हाट कैन वी से, द कंडीशन फॉर एनी रूम, द कंडीशन फॉर एनी रूम टू गेट पॉइंट्स, फॉर एनी रूम टू गेट पॉइंट्स बेसिकली व्हाट डू वी नीड, कि लेट से एचपी है, लेट से हम उसकी इनिशियल हेल्थ जो है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन से हम रूम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मान लेते थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एचपी माइनस जो भी लॉस होगा बीच में, जो लॉस इज बेसिकली जो भी डैमेज हुआ है, राइट, जो भी हमें डैमेज होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, रिक्वायरमेंट, ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ लेट्स कीप इट एज आई, ओके, लेट्स से हम ith इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा ith इंडेक्स है जो फोकस में है, राइट। नाउ दिस लॉस कैन ऑल्सो बी ओपन एज व्हाट, दिस लॉस कैन बी ओपन एज व्हाट, इट कैन बी ओपन एज व्हाट, लेट से हम आई से जे तक ले रहे हैं, मान लो जे से लेके आई तक का इंडेक्स है, ठीक है, जे हमारा पहले आया है, आई हमारा बाद में आया है, सच दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, डैमेज ऑफ जे प्लस डैमेज ऑफ j+1, ऐसे करते करते अप टू डैमेज ऑफ आई, ये बड़ा होना चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ आई से, करेक्ट, हमने इसको ओपन कर दिया, जो शुड बी बिगर देन रिक्वायरमेंट ऑफ आई, रिक्वायरमेंट ऑफ आई, करेक्ट। अब समझते हैं इस और फॉर्मूले को और कैसे शॉर्ट डाउन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, राइट। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर कहीं भी आता है तो वहां पर क्या चीज लगाई जा सकती है? सोचो, क्या लगाई जा सकती है? इट्स प्रीफिक्स सम टेक्निक, इट इज प्रीफिक्स सम टेक्निक। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, एच पी माइनस, अब इस फंक्शन यहाँ पर मैं प्रीफिक्स सम को चेंज नाम लिख देता हूँ, सो लेट्स टेक इट एज पी, लेट्स टेक इट एज पी, तो पी ऑफ आई माइनस पी ऑफ, और जहां से हमने स्टार्ट किया था, पी ऑफ स्टार्ट -1, ठीक है, ये होना चाहिए क्या, द कंडीशन, राइट, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। दिस शुड बी द कंडीशन दैट वी शुड फुलफिल फॉर एनी आई, ठीक है। अगर ये फुलफिल हो रही है, यहाँ पर आप स्टार्ट के अलग अलग वैल्यूज डाल के देखोगे, राइट। यहाँ पर बेसिकली अभी भी जो फॉर्मूला है उसको भी हमें और भी नीचे और अच्छे तरीके से ले जाना है, राइट। अभी भी इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पर जे की वैल्यू या स्टार्ट की वैल्यू डालते जाओ, इसको मैं ऐसा करता हूँ जे लिख देता हूँ, सो दैट विल बी एक्चुअली बेटर, ठीक है।
इसको इसके फॉर्म में, इससे बेटर है कि मैं जे के फॉर्म में लिखूं, पी ऑफ जे माइनस वन, राइट। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, सो दिस मेक्स मोर सेंस। अब यहाँ पर आप जे की वैल्यू पर डाल के देखोगे, अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। अभी इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? बस फॉर्मूले को रीअरेंज करके। यहाँ पर देखो आई का टर्म है, आई का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको अगर आप खोलोगे तो व्हाट वी गेट, पी ऑफ जे माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ आई प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ आई माइनस एच पी। अच्छा ये बताओ, हम तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास, हम ith इंडेक्स पे होंगे, तो दिस विल बी हमारे पास उसी आइट्रेशन पे होगा, राइट। व्हेन वी आर एट ith इंडेक्स, तो हमारे पास पी ऑफ आई होगा जो हम निकाल चुके होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ आई भी होगा जो हम निकाल चुके होंगे, एंड देन वी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? वी हैव एक्चुअली फाउंड अ लोअर बाउंड और अ थ्रेशोल्ड ऑन पी ऑफ जे माइनस वन। ये पूरा जो है वो एट अ टाइम कांस्टेंट होगा। क्यों? ith इंडेक्स पे हम होंगे तो हमें पी ऑफ आई मिल चुका होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ आई हम निकाल लेंगे उसी टाइम पे वहीं पर इंडेक्स से, एरे से। और एचपी जो होगा वो हमें गिवन है इनिशियली, जो ओरिजिनल हमारा हेल्थ एचपी दिया हुआ है। दिस मींस दिस मींस वी हैव फाइनली बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन ब्रिंग इट डाउन टू अ थ्रेशोल्ड, राइट। इसका मतलब जितने भी ऐसे जे हैं, जितने भी ऐसे इंडेक्सेस हैं, सच दैट वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो सबके सब हमारे पॉसिबल काउंट होंगे ith इंडेक्स के लिए, करेक्ट। सो वट एवर इज द काउंट ऑफ जे सच दैट पी ऑफ जे माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी फॉर एनी आई इंडेक्स, वो हमारा ith इंडेक्स के लिए स्कोर बन जाएगा, राइट। और ऐसे ही सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लूपिंग करते जाएंगे तो फॉर एवरी इंडेक्स यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। अब पॉइंट ये है कि ये काउंट कैसे निकालोगे आप, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस काउंट? तो एक बात बताओ, जो हमारा प्रीफिक्स एरे है, ठीक है, वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर कह लो इंक्रीजिंग होता है ना, जनरली इंक्रीजिंग के फॉर्म में होता है। क्यों क्यों? वाई? बिकॉज दिस सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, राइट। एक के बाद एक पॉजिटिव नंबर्स ऐड अप होंगे तो हमारा जो सम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस मींस दिस एरे इज प्रेजेंट इन व्हाट, इज प्रेजेंट इन सॉर्टेड फॉर्म। दिस प्रीफिक्स सम एरे इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉर्टेड फॉर्म, याद रखना है हमेशा चीज। प्रीफिक्स सम एरे होता है, और अगर कभी भी आपके जो नंबर्स है प्रीफिक्स सम में जब यूज कर रहे हो, दे आर ऑल पॉजिटिव या फिर दे आर ऑल नेगेटिव, तो रिमेंबर, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि हर एक सम जो होगा वो पिछले वाले सम से बड़ा होगा। This means this means finding this threshold value in a sorted array will take how much time? Will take log n time. कैसे? आप यूज करोगे बाइनरी सर्च, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। तो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन जस्ट प्रीफिक्स सम टेक्निक, प्रीफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च, जो कि वन ऑफ द मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्बोज है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इट्स जस्ट अ ट्विस्टिंग ऑफ लैंग्वेज, एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो प्रीफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च के बेसिस पे बनते हैं, और अब क्वेश्चन सॉल्व है, राइट। अब हर एक इंडेक्स पे, ठीक है, आपको बस लॉग एन टाइम लगेगा फॉर काउंट, एंड ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी एन लॉग एन, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर एन, राइट। दिस इज टाइम, दिस इज स्पेस, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द कोड पार्ट, कोड फॉर दिस, राइट। तो देखो, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले साइज निकाला, उसके बाद अपना प्रीफिक्स सम एरे बनाया, देन वी प्रीफिक्स सम ऑल द डैमेज, याद रखो हम प्रीफिक्स सम डैमेजेस पे निकाल रहे थे, राइट। एंड देन वी जस्ट हैव टू डू नथिंग, वी जस्ट हैव टू आइट्रेट ऑन द कंप्लीट एरे। एक आई उठाया, जिसका मतलब ith इंडेक्स के लिए आंसर निकालने वाले हैं कि अगर ith इंडेक्स पे हमें एक पॉइंट चाहिए, तो कौन सा ऐसे कितने ऐसे रूम्स होंगे जो कि हमें ये आंसर दे सकते हैं। एंड रिमेंबर, कोई भी इंडेक्स आई है, उसके लेफ्ट वाले रूम्स ही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके राइट वाले रूम्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में आते हैं, राइट। तो हमें देखना है कि भाई कंट्रीब्यूट कौन ith रूम पे कर सकते हैं, तो वी ओनली लुक इन द लेफ्ट डायरेक्शन जो उसके पहले आए हैं, राइट। नाउ वी गेट द थ्रेशोल्ड जो कि हमने अभी निकाला था, प्रीफिक्स सम और प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ आई माइनस एचपी। उसके बाद वी अप्लाई बाइनरी सर्च, तो आप लोअर बाउंड लगा लेते हो। एंड सी, हम बाइनरी सर्च किस किस रेंज में लगाते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स अप टू ith इंडेक्स, आई प्लस वन कह लो क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है। सो इस रेंज में लगाते हैं, राइट। जीरो से आई या फिर वन से आई के रेंज में हम निकालते हैं हमारा वर्ड, हमारा टू गेट द नंबर ऑफ काउंट्स, राइट। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स है वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके राइट वाले नहीं कर सकते हैं, राइट। इवन अगर पॉसिबिलिटी है कि हमारे नंबर्स बड़े हैं, देन टू वी कांट यूज देम, क्योंकि उसके राइट वाले कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इस रूम में एक पॉइंट अर्न करने के लिए, राइट। एंड वी गेट दिस इंडेक्स, एंड देन वी जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ द इंडेक्सेस, तो हमें काउंट पता लग जाएगा कि कितने ऐसे रूम्स हैं बेसिकली, राइट। एंड फाइनली रिटर्न द आंसर, एंड दैट्स ऑल। This in this way we can solve the third question. Simple question, हल्की सी लैंग्वेज ऊपर नीचे करनी है, इट्स जस्ट अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू लुक एट द क्वेश्चन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है, इफ यू डायरेक्टली जंप टू द सोल्यूशन की जो बोला गया है, डायरेक्टली डू इट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, योर प्रॉब्लम इज यू आर गोइंग टू गेट स्टक ऑन दैट प्रॉब्लम, राइट। Always try to come up with various logics. I'll tell you, this is a very good good practice.
So even let's say if you have done, if you are able to do a question in contest, okay, let's say you are able to solve, then too it's a very good practice to look at other solutions as well. I'll tell you why. Looking at other solutions can actually trigger a lot of analytical thinking in your mind. Okay, आप और तरीकों से भी सोचना शुरू कर देते हो. आपके पास अभी एक तरीका था, आपने वो कर दिया, आपको खत्म हो गया, ठीक है, हाँ हो गया. जब आप दूसरों के सोल्यूशन देखते हो, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी किसी ने और कुछ सोचा हो, किसी ने बहुत बहुत भयंकर थिंकिंग लगा दी हो, और क्या पता आगे चल के you might be able to use it, right? So that's why it's always a good practice to look at solutions of other people, even if you have done the problem, right? अगर सेम है तो मत पढ़ो, बट अगर डिफरेंट अप्रोच किसी ने लगाई है तो ट्राई टू रीड इट. ओके, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन ट्रिगरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं. समटाइम्स यू डू नॉट हैव अ डायरेक्ट वे, सो यू हैव टू टेक अ बेंट रोड. तो उसका मतलब है कि उस टाइम पे आप थोड़ा घुमा के जाते हो, राइट? बहुत बार चीजें होती हैं कि यू आर नॉट एबल टू डायरेक्टली कैलकुलेट देम, और उन्हें कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है. सो यू मेक यूज ऑफ सम अजम्पशंस, जिसका हमें फायदा मिल सकता है. फिर कोई और अप्रोच हो जिसमें हमें वो चीज कैलकुलेट ना करनी पड़े, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ वे. सो इसीलिए try looking at other solutions as well. Okay, with this we have completed three problems of the contest. तीनों स्टार्टिंग के दो तो बहुत इजी थे. जिस वाले में हल्का दिमाग लगाना था, सिंपल प्रीफिक्स, सिंपल बाइनरी सर्च था. अब आता है हमारे कॉन्टेस्ट का हार्ड क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. It's basically not a very hard, it's on the outlier, it's basically medium to medium hard. I will not call it a hard question at all. Okay, let's see this question. The name of the question is maximum subgraph score in a tree. Okay, you are given an undirected tree with n nodes numbered from 0 to n minus 1. हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया हुआ है. ठीक है, याद रखो अनडायरेक्टेड ट्री है, इसका मतलब एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं, एज वेल एज ये ट्री रूटेड नहीं है. ठीक है, याद रखो ट्रीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. देयर आर रूटेड ट्रीज, देयर आर अनरूटेड ट्रीज. तो जब आपको मेंशन नहीं किया गया, व्हेन यू आर नॉट टोल्ड अबाउट द रूट ऑफ द ट्री, दिस मींस कि वो अनरूटेड है, और आप किसी भी एलिमेंट को अपना रूट मान सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक चॉइस फॉर द रूट, और इफ यू कैन चूज एनी एलिमेंट एज योर रूट, नॉट एन इशू. ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है. Let's look at the question further. It is represented by 2D integer array edges of length n minus 1, where edges ai bi, indicating there is an edge between nodes ai bi. You are also given an integer array good of length n, where good of I is 1 if the ith node is good, or 0 if it is bad. Great. Define a score of a subgraph as the number of good nodes minus the number of bad nodes in that subgraph. तो कोई भी सबग्राफ जो होता है, सबग्राफ इज बेसिकली सबसेट ऑफ द कंप्लीट ग्राफ. ठीक है, सबसेट का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई नोड कहीं से भी कनेक्ट कर दी. जो कनेक्शंस हैं उसी में से आप कुछ हिस्सा उठा लेते हो. ठीक है, ताकि वो कनेक्शन जो है वो इंटरमिट वो अपने इंटैक्ट रहे, राइट? दैट इज कॉल्ड सबग्राफ. ये नहीं कि आपने कोई भी नोड कहीं भी जोड़ दी, दैट इज नॉट सबग्राफ, राइट? सबग्राफ में कनेक्टिविटी शुड रिमेन एज द ओरिजिनल ग्राफ, राइट? फॉर ईच नोड आई, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अमंग ऑल कनेक्टेड सबग्राफ्स. तो हर एक नोड के लिए बेसिकली आपको पता लगाना है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, जितने भी वो सबग्राफ बना सकते हैं. तो फॉर एनी आई देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सबग्राफ जिसमें वो नोड आता हो. फॉर एनी एवरी सबग्राफ यू कैन कैलकुलेट द स्कोर. स्कोर इज व्हाट, नंबर ऑफ गुड नोड्स माइनस द नंबर ऑफ बैड नोड्स, एंड यू हैव टू फाइंड फॉर ईच नोड द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल. Great. A subgraph is a graph whose vertices and edges are subsets of the original graph. As I said, a connected subgraph is a graph in which every pair of its vertices is reachable from one another using only the edges. इसका मतलब कनेक्टेड है, टूटे हुए नहीं है. लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. हमारे पास पहला जो ट्री है वो है 0 1 2. अब यहाँ पर आप चाहे किसी को भी रूट मान लो. नाउ आई टेल यू फर्स्ट थिंग. जनरली ऐसा होता है इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस where you are given like a tree where you are not told about the root. Generally the choice of root is not, it does not matter. ओके, आप किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को आप अपना रूट बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको रूट के बारे में स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी कि द चॉइस ऑफ रूट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल आंसर. इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल आंसर, राइट? अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर 0 को रूट मान लूं, 1 को रूट मान लूं या 2 को रूट मान लूं, तो आंसर सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 0 को रूट मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो पहली एज हम ट्री तो दिख ही रहा है, और इनकी स्कोर क्या है, 101 है. तो लेट्स से फॉर हमें 0 के लिए निकालना है. 0 के लिए देखिए, अगर वो अकेले खुद को ले तो 1 माइनस 0 होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब अकेले वो है, द नंबर ऑफ गुड नोट्स इज 1 एंड नंबर ऑफ बैड नोट्स इज 0. ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 आ जाता है. अगर हम इस पूरे सब ग्राफ को ले लें, अगर हम 0 1 को लेंगे, अगर हम यहाँ तक का सब ग्राफ लेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि 0 का होता है यहाँ, इस वाले ये गुड नोट है, ये बैड नोट है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. और हमें इससे बेटर आंसर मिल चुका था जो कि 1 था, राइट? अगर हम 2 तक एक्सटेंड कर ले तभी 1 ही आएगा 0 के लिए, राइट? सो वी कैन सी फॉर 0 द बेस्ट आंसर इज 1. इन सिमिलर वे अगर हम इस 1 को ले रहे हैं, इस 1 को ले रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इन गुड नोट्स को ले लें. गुड नोट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना हमारे लिए बेटर होगा. रिमेंबर दिस थिंग. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मोर नंबर ऑफ गुड नोट्स, तो डायरेक्ट कॉमन सेंस है, राइट? तो इसलिए 1 के लिए बहुत क्या बनेगा, इट विल बी 2 माइनस 1, जो कि 1 दे सकता है अगर हम तीन नोट्स पकड़ लें. सेम गोज विद 2, राइट? लेट्स गो टू दिस टेस्ट के सेकंड टेस्ट केस, जहां पर 1 0 2 ऐसे 3 4 दे रखा है. अब 1 को देखो, सिंपल सी बात है, अगर 1 हमारे पास है तो हम 1 3 4 इन तीन नोट्स को एक सब ग्राफ में ले लें, तो क्या रहेगा, बेटर रहेगा. इन दैट केस 1 के लिए आंसर क्या आना चाहिए, 3, राइट? वी कैन सी 3. अब 0 को देखते हैं.
जीरो सिंपल सी बात है खुद ही -1 है, तो इट्स बेटर कि सिंपल सी बात है ये पूरा ऐसे लिया जाए, टू को छोड़ के जितने बाकी नोट्स हैं उन सबको साथ में ले लो। इट विल बी व्हाट, 3 - 1 विच गिव्स यू 2। उसके बाद 2 पे आते हैं, 2 भी 0 की तरह ही है, तो इट ऑल्सो गेट 2। अब 3 की बात आती है, तो 3 सिंपल सी बात है 1 3 4 एक साथ में ले लो, 3 आएगा। 4 के लिए भी सेम ही आएगा। सो यू विल बी एबल टू, यू कैन एक्चुअली सी कि बहुत सारे सब ग्राफ्स के लिए आंसर सेम आता है इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मैक्सिमम सब ग्राफ। ये याद रखो। अगर कोई भी नोड ऐसा है जो कि मैक्सिमम सब ग्राफ यानी मैक्सिमम स्कोर सब ग्राफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस सब ग्राफ में जितने भी नोड्स होंगे उन सबका स्कोर सेम आएगा। उन सबका स्कोर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट पार्ट। कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। वी हैव व्हाट, द नंबर ऑफ नोड्स कैन गो अप टू द पावर ऑफ 5, नंबर ऑफ एजेस n-1 क्योंकि ट्री है। एजेस है हमारे पास ए आई बी आई लेस देन एन होंगी, गुड इज लेस देन एन, एंड 0 और 1 होगा। द इनपुट इज जनरेटेड हो जाता है, एजेस रिप्रेजेंट्स अ वैलिड ट्री। ठीक है, ट्री वैलिड होगा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट वाज द अप्रोच टू एक्चुअली यू नो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक ट्री बना लेते हैं, छोटा सा ट्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप, ये आपने एक ट्री बना लिया। लेट्स इसको नेम कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इनको रैंडमली स्कोर असाइन कर देते हैं। स्कोर बेसिकली इज गुड। जो गुड था, ये मान लो -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, और ये भी +1 है। हमने स्कोर असाइन कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग। सबसे पहली बात तो जो भी मैक्सिमम सबग्राफ आएगा, जो कि मैंने कहा था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द मैक्सिमम सबग्राफ जो भी आता है उन सब में एक्चुअली सारे एलिमेंट्स का स्कोर इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बस 2 बार डीएफएस लगाना है, और वो कैसे लगाना है अब उसको समझो। यू माइट हैव सॉल्व्ड अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम विच इज नोन एज द मैक्सिमम सम पाथ। ठीक है, यू माइट रिमेंबर कि हमारे पास एक पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं जहां पर हमें ट्री दिया होता है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैक्सिमम सम पाथ। ये सेम वही है, यहाँ पर हर एक नोड की वैल्यू या तो +1 या तो -1 है, एंड वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम पॉसिबल। कोई भी पाथ हो सकता है, राइट? वो कोई भी पाथ हो सकता है, हमें मैक्सिमम सम निकालना है, राइट? देखो, हम इसमें क्या करेंगे, एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज करेंगे। इसमें डीएफएस स्टार्ट करते हैं नीचे से, मतलब पहले से ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका नेट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमने बाय डिफॉल्ट 0 को अपना रूट चूज कर लिया। 0 क्या किया, अपना रूट बना लिया, राइट? अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, द पॉजिटिव स्कोर एंड द नेगेटिव स्कोर विल मेंटेन बोथ ऑफ देम। सो हम 7 पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम रूट से लीव से स्टार्ट करेंगे। 7 में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है? ओके, द स्कोर इज व्हाट, 1, 0। ग्रेट। यहाँ 4 पे क्या है, इट इज 1, 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव एक भी नहीं है। यहाँ 6 के लिए क्या है, 6 के लिए क्या है, 1, 0, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। देन वी हैव 8, 8 में क्या आएगा, 0, -1। करेक्ट। अब ये सोचो कि ये जो नोड्स हैं 4 और 7, सिंपल सी बात है दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको इंक्लूड करें अपने पेरेंट में, ठीक है, दिस इज व्हाट, फॉर 5 दीज आर सब ग्राफ्स, दीज आर बेसिकली सब ग्राफ, और यू कैन से चिल्ड्रन, राइट? सो अगर अगर जो नेट स्कोर है, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन, we will add the score, the net score of a node to its parent only if the net score is positive. Okay, remember this. We will only add the score of a child to its parent node only if the net score of this child is positive. क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर नेट स्कोर नेगेटिव है तो ये हमारे ओवरऑल क्या कहते हैं वेट, जो स्कोर आएगा उसको घटाएगा। रिमेंबर दिस। अगर कोई सब ग्राफ है जिसका जो वेटेज है या फिर टोटल स्कोर है वो नेगेटिव आ रहा है, उसको हमें आगे नहीं ले जाना चाहिए भाई। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम स्कोर। सिंपल सी बात है, अगर हम ये नेगेटिव वेट वाले सब ग्राफ को या फिर सब चाइल्ड को ऊपर ले जाएंगे, इसका स्कोर ऊपर ऐड करेंगे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज आर आंसर, राइट? इट विल डिक्रीज आर स्कोर। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी नेगेटिव सब चाइल्ड होता है, ये नेगेटिव स्कोर सब चाइल्ड होता है, तो वी शुड नॉट ऐड इट टू द पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, नेट स्कोर क्या है, 1, -0। यहाँ पर नेट स्कोर क्या है, 1, -0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेट स्कोर क्या बन जाएगा, दो पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर 5 जो है वो खुद -1 है, तो एक नेगेटिव आ गया। सो यहाँ पर नेट स्कोर क्या है, नेट स्कोर फॉर 5 इज बेसिकली व्हाट, नेट स्कोर अभी 5 के लिए जो है वो 1 है, राइट? वो क्या है, 1 है, क्योंकि 2 - 1 है। अभी देखना है इसको हम अपडेट कैसे करेंगे। अभी दिस इज बेसिकली व्हाट, बॉटम टू टॉप।
अभी हमें दो डीएफएस करने हैं, पहला डीएफएस चल रहा है, राइट? तो पहले हम बेसिकली नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी नोट, देखो कोई भी नोट जो होती है, उसके पेरेंट्स ऊपर होते हैं और चाइल्ड नीचे होते हैं। तो पहले हम चाइल्ड का इफेक्ट निकालेंगे कि इस नोट पे क्या है, और सेकंड डीएफएस में ऊपर से नीचे आएंगे टू टू ऐड द इफेक्ट ऑफ द पेरेंट। तो हमारे दोनों साइड कवर हो जाएंगे, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। दैट इज व्हाई वी नीड टू डीएफएस इन दिस प्रॉब्लम। इसमें और कुछ भी नहीं है। पहले जो उसके सब चाइल्ड है उनका इफेक्ट निकालो नोट पे, और उसके बाद जो पेरेंट है या फिर सब जो और एंसेस्टर है उनका इफेक्ट निकालो नोट पे, तो हमें टोटल इफेक्ट पता लग जाएगा, राइट? अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं दिस इज व्हाट 2 प्लस माइनस 1 व्हिच गिव्स यू 1। दैट इज व्हाई, इसका मतलब ये जो हमने जितना पूरा सब ग्राफ लिया है, इसका जो नेट स्कोर है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वी कैन एक्चुअली ऐड इट अपवर्ड्स। यहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नेट स्कोर क्या बनेगा, 3 कॉमा माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ पर स्कोर 1 था, यहाँ पर स्कोर 2 हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट? अब नेट स्कोर इसका भी पॉजिटिव है। नेट स्कोर इसका पॉजिटिव है, 3 प्लस माइनस 1 विच गिव्स यू 2। तो इसका मतलब इसको भी अपने पेरेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ पर जाते वक्त क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 कॉमा माइनस 2। अब यहाँ, अब इतना पार्ट कवर हो गया। अब इस सब ट्री पे देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस विल बी 1 कॉमा 0। और अभी अपने पेरेंट, सिंपल सी बात है, नेट स्कोर इज व्हाट 1 माइनस 0 जो कि पॉजिटिव है। दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द पेरेंट। और ये जो नेट स्कोर है ये 4 कॉमा माइनस 2 बन जाएगा, राइट? दिस विल बिकम 4 कॉमा माइनस 2। फिर आते हैं अब यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर दिस दिस वी कैन सी, यहाँ पर 0 कॉमा माइनस 1 जा रहा है, यहाँ पर 1 कॉमा 0 जा रहा है। तो इसका इफेक्ट नेट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो यहाँ 3 पे जो नेट स्कोर होगा वो क्या बनेगा, इट विल बी बेसिकली दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट? दो पॉजिटिव ये और ये, और एक नेगेटिव ये और ये। एंड वी कैन सी द नेट स्कोर इज पॉजिटिव बिकॉज 2 - 1 = 1। ठीक है? इसका मतलब तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा अपने पेरेंट पे। ये अपने पेरेंट पे कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या, यहाँ +2 होगा, तो दिस विल बिकम 6। दिस विल बिकम 6, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम ये -1 चला जाएगा, तो दिस विल बिकम -3। तो इसका मतलब जीरो के लिए व्हाट इज द बेस्ट स्कोर, जीरो के लिए जो बेस्ट स्कोर पॉसिबल है दैट इज बेसिकली 6 - 3 = 3। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर जीरो, दिस ओनली फॉर द रूट। अभी हम जब दोबारा ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हर एक पेरेंट का उसके चाइल्ड पे भी इफेक्ट हमें देखना है अभी, राइट? अभी तो हमने चाइल्ड का पेरेंट पे इफेक्ट देखा है। वी ऑल्सो हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ पेरेंट ऑन द चाइल्ड, ठीक है? अब क्योंकि जीरो हमारे टॉप मोस्ट पे है तो उसका तो कोई और पेरेंट है ही नहीं। तो इस पूरे टॉप, बॉटम टू टॉप डीएफएस की वजह से हमें रूट के लिए बेस्ट आंसर मिल जाएगा। रूट के लिए बेस्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप देख भी लो तो व्हाट शुड बी द बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा, इट विल बी बेसिकली व्हाट, यहाँ पर अगर हम पूरा ये ले लें, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पर +1 आ रहा है, यहाँ पर +2 आ रहा है। क्या ज्यादा घटा दिया क्या? हाँ हाँ। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई करते वक्त कि भाई इसका नेट सम नेगेटिव था, इसका नेट सम नेगेटिव था, इसको ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। दिस वाज द मिस्टेक, दैट इज व्हाई यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, दिस विल नॉट गो अबव, तो ये 2 कॉमा 0 रहेगा। ओके, दिस विल रिमेन 2 कॉमा 0 एंड दिस विल रिमेन 2। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 3 and 3 6, या दिस इज करेक्ट, हाँ। तो सिंपल सी बात है, इस वाले नोट का जो नेट स्कोर था वो -1 था। दैट इज वाई ये ऊपर नहीं जा पाएगा। ओके, एज आई सेड कि इफ द स्कोर ऑफ अ सब चाइल्ड इज बेसिकली नेगेटिव तो उसका वेटेज ऊपर ऐड नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई दिस विल गो टू 2 कॉमा 0, कि दो पॉजिटिव है बेसिकली डिनोटिंग दिस पार्ट, ठीक है? एंड 0 नेगेटिव, सो द नेट स्कोर विल बी एक्चुअली 6 कॉमा -2। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर 4 आएगा, ठीक है? और इसको आप देख भी सकते हो कैसे, यहाँ पर जब 4, यहाँ पर अगर आप ये पूरा सेगमेंट ले लो, ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा क्योंकि दो नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। 6 - 2 = 4, तो इसका मतलब इसका बेस्ट स्कोर जो बन सकता है जीरो के लिए, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली 4। ठीक है, अब ये आपने निकाल लिया है फॉर द टॉप टू बॉटम। अब इस ट्री को जल्दी से दोबारा बना लेते हैं। वील मेक दिस ट्री अगेन। ओके, सो इस ट्री को दोबारा बना लेते हैं पहले जल्दी से। एक बार ट्री में देख भी लूँ, काफी बड़ा बना लिया था। तो इट इज लाइक व्हाट, ऐसे जा रहा है, इसके दो चाइल्ड हैं, इसका इधर एक चाइल्ड है, फिर इसका इधर एक चाइल्ड है, ठीक है? और इसके फिर ऐसे करके दो चाइल्ड है, राइट? और इनकी नंबरिंग कर लेते हैं फटाक से। दिस इज व्हाट, 0 2 1 3 8, आई थिंक दिस वाज 6, दिस वाज 5, दिस वाज 7, दिस वाज 4। और हमने अभी नेट स्कोर सबके लिए निकाल लिया था, ठीक है? नेट स्कोर सबके लिए निकाल लिया था। तो लेट्स राइट दैट नेट स्कोर। तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज नेट स्कोर वाज 4, राइट? हमने इसका नेट स्कोर निकाल लिया था। बाकी अभी सबका नेट स्कोर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। द नेट स्कोर ऑफ 7 इज व्हाट, 1 है क्योंकि 1 - 0 है। इसका भी 1 है। इसका नेट स्कोर क्या आएगा, इसका नेट स्कोर आएगा 1, क्योंकि 2 - 1 आता है, राइट? अब इस 2 के लिए, ये 2 पॉजिटिव था तो इसका नेट स्कोर क्या था, 2 था। इसका नेट स्कोर 2 था, राइट? और ये जो 1 है, इसका नेट स्कोर 1 होगा, करेक्ट? इसका नेट स्कोर 1 होगा।
यहाँ जो 6 है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? तो इसका नेट स्कोर अभी 1 है, 1 है। इसका -1 है, ठीक है। और इस 3 का क्या है? इस 3 का नेट स्कोर है 2, ठीक है। ये अभी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हमें रूट के लिए जो आंसर है वो करेक्ट मिल चुका है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट बॉटम, टॉप टू बॉटम। नाउ विल गो टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका स्कोर 4 है। इसका मतलब द बेस्ट पॉसिबल आंसर। अब ये भी समझो, ये जो सब ट्री था, ये जो सब ट्री हमने ये वाला लिया था, इसको जो इफेक्ट पता लगा है, इस जो ये जो नोड है 2, इसको इफेक्ट जो पता लगा है वो सिर्फ अपने सब चाइल्ड से पता लगा है। बल्कि टू बी ऑनेस्ट, इफ यू सी, सिंस यू वांट द मैक्सिमम स्कोर, सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूट करने वाले इसके सिबलिंग भी हो सकते हैं ना, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसके जो पेरेंट है, सिर्फ इसका जो पेरेंट है 0, सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा। हो सकता है कि अगर हम ये वाला पूरा ले लें, इफ वी टेक दिस कंप्लीट कंप्लीट कंपोनेंट, तो आप ये देखो, इस कंपोनेंट में जितने भी नोड्स आते हैं, इस कंपोनेंट्स में जितने भी नोड्स आते हैं, उन सबका स्कोर सेम होगा। कैसे? क्योंकि दिस इज मैक्सिमाइजिंग, सिंपल सी बात है, इस 2 पे ना अभी इन सब पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। द प्रॉब्लम इज दिस ओनली, ये जो हमने जब बॉटम टू टॉप किया, तो हमें हर एक नोड के लिए बस चाइल्ड का इफेक्ट पड़ा। चाइल्ड का इफेक्ट जो था वो हमने बस वो कैलकुलेट किया है। उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो सिबलिंग्स हैं, उनका जो आंसर है, उसका जो इफेक्ट है, वो हम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाए। वो हम अब कैलकुलेट करेंगे। भाई, क्योंकि जब हम पिछली बार इन द प्रीवियस रन, व्हेन वी वर एडिंग अप द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड ऑन द पेरेंट, हमने क्या किया? हमने बेसिकली हर एक नोड के जो सिबलिंग्स थे, उनका इफेक्ट भी अपने पेरेंट में ऐड कर दिया है। अब जब हम पेरेंट से वापस चाइल्ड पे आएंगे, तो उसकी सिबलिंग का इफेक्ट उसमें एडेड हुआ ही आएगा, right? Now when we are going to add the effect of parent to the child, the effect of its siblings would already be present in it, क्योंकि हमने पिछले टर्न में सारे सिबलिंग्स को ही ऐड करके पेरेंट को बनाया था, राइट? यही है यहाँ पर लॉजिक, यही है यहाँ पर कोर लॉजिक। आप देखो, इफ यू चूज दिस कंप्लीट सब ग्राफ, जो कि हमारा मैक्सिमम सब ग्राफ बन रहा है, इसमें जितने भी नोड्स आते हैं, इन सबका स्कोर सेम आएगा। वाई? ये समझो, जब since we have chosen all these nodes, सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ गुड नोड्स माइनस द नंबर ऑफ बैड नोड्स, वो इन सब नोड्स के लिए सेम होगा ना, क्योंकि हम इस पूरे कंपोनेंट को ले रहे हैं, जो मैंने ऐसे एनसर्कल कर रखा है। द नंबर ऑफ गुड नोट्स माइनस द नंबर ऑफ बैड नोट्स, यानी कि जो जो स्कोर आएगा, वो इन सारी नोट्स के लिए सेम आएगा। दिस मीन्स हमें बस क्या करना है, ठीक है, पेरेंट्स से स्टार्ट करो, ठीक है, पेरेंट्स से स्टार्ट करो, उसके चाइल्ड पे जाओ, चाइल्ड पे चेक करो कि क्या जो चाइल्ड का जो जो पॉजिटिव स्कोर है, अगर वो नेट पॉजिटिव स्कोर पॉजिटिव है, इसका मतलब इट मस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू द पेरेंट, ठीक है। आप ऐसे समझो, आई राइट द स्टेटमेंट, लेट से, इफ द स्कोर ऑफ चाइल्ड वाज पॉजिटिव, दिस मीन्स इट मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पेरेंट, ठीक है। क्योंकि इसका नेट स्कोर पॉजिटिव आया था, इसका मतलब दिस मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पेरेंट, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट किया है, दिस मींस इट इज द पार्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट एज द पेरेंट नोड, करेक्ट? जस्ट बिकॉज इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स पेरेंट नोड, दिस मींस इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके, यू बेसिकली चेक फर्स्ट, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस मींस देयर कैन बी आइदर टू थिंग्स, द फाइनल स्कोर ऑफ चाइल्ड ऑफ आई वुड बी एक्चुअली इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी उसका करंट स्कोर है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता पेरेंट में, जब पेरेंट के और ऊपर जाने पे नेगेटिव नोट्स मिले हो, तो क्या पता पेरेंट वाली नोट्स का जो नेट स्कोर हो वो 0 हो गया है, नेगेटिव चला गया हो, राइट? सो वी डू नॉट वांट टू इक्वलाइज दैट, राइट? सिंपल सी बात है, what do we do? If child of I is, child of I is greater than 0, basically the net score of ith child, basically child is greater than 0, it must have contributed to the parent, so its final value will either be maximum of child of I or the value of its parent, सिंपल, ठीक है। रिमेंबर दिस, हमने जो बॉटम टू टॉप से जो पहले निकाला था, उसके फाइनली बाद हमें रूट पता लग गया था, उसके बाद हम टॉप टू बॉटम आते हैं, एंड एट ईच पॉइंट व्हाट डू वी चेक, कि जो हमारा चाइल्ड है, ठीक है, जो हमारा चाइल्ड है, बेसिकली जो उसका स्कोर है, वो अगर नेट पॉजिटिव रहा होगा, दिस मीन्स कि पिछले वाला जो हमने डीएफएस रन किया है, उसमें दिस मस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू इट्स पेरेंट, क्योंकि इसका नेट स्कोर पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई। इसका मतलब इट्स स्कोर शुड बी इक्वल टू द पेरेंट और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पेरेंट, ठीक है। या तो पेरेंट के इक्वल होगा, या तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन योर पेरेंट, ठीक है। जो भी पेरेंट का नेट स्कोर है, या तो ये उससे बड़ा रहेगा, या तो उसके इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू डू when child of I is greater than 0, you just run this condition, this will update your final score of child of I, ठीक है। अब लेट्स से at any point child of I was less than 0, चाइल्ड ऑफ आई वाज लेस देन 0। अब ये बताओ, हमने अभी पिछले ही बारे में बात करी थी कि व्हेन वी रन द डीएफएस फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, जहां पर भी हमें नेट स्कोर नेगेटिव मिलता है किसी भी नोड का, डू वी फॉरवर्ड इट डू वी फॉरवर्ड टू द टॉप? क्या वो चाइल्ड कंट्रीब्यूट करता है अपने पेरेंट पे? नहीं करता है। इफ इफ द नेट स्कोर ऑफ अ चाइल्ड इज नेगेटिव, बेसिकली लेस देन 0, दिस मीन्स कि हमने उसका कंट्रीब्यूशन पेरेंट में नहीं लिया होगा, राइट?
So what we'll do in such cases, whenever you find the net score of child is basically less than 0, you again run the same type of condition. ठीक है, it will be maximum of चाइल्ड ऑफ आई। ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ पर लेने का क्या मतलब है, हो सकता है कि सारे जितने भी नोड्स हो सबके सब नेगेटिव हो, सब बैड नोड्स हो। ठीक है, उस केस में वो अकेला ही नोड काफी है। दैट इज वाई वी आर टेकिंग चाइल्ड ऑफ आई, कि मैक्सिमम ऑफ चाइल्ड ऑफ आई। या फिर अब ये समझो, हमें नेट कंट्रीब्यूशन निकालना है। सिंपल सी बात है, जब हम पॉजिटिव नोट्स की बात कर रहे थे, मैं टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ नोट्स, इन्होंने तो कंट्रीब्यूट किया ही है, इन्होंने तो अपने पेरेंट में कंट्रीब्यूट किया है। दैट इज वाई वी आर मैक्सिमाइजिंग विद चाइल्ड ऑफ आई एंड द पेरेंट ऑफ आई का स्कोर। बट जो ये नेगेटिव स्कोर वाली नोट्स हैं, इन्होंने अपने पेरेंट पे कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। ठीक है, तो इन नोट्स का जिनका नेट स्कोर लेस देन 0 आता है, इनका अपने पेरेंट पे कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? इट विल बी पी ऑफ आई, इसके पेरेंट का स्कोर प्लस इसका पेरेंट स्कोर, राइट? क्योंकि हमने ये कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया था। याद रखो, द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ नेगेटिव, द नेट कंट्रीब्यूशन फॉर एनी नोड इज बेसिकली व्हाट? उसका स्कोर प्लस उसके पेरेंट का स्कोर, राइट? दैट इज द नेट कंट्रीब्यूशन टू द पेरेंट। क्योंकि चाइल्ड ऑफ आई लेस देन 0, तो दैट इज वाई हमने इसका कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया था। तो दैट इज वाई व्हेन वी मैक्सिमाइज दिस द स्कोर ऑफ दिस नोड, वी बेसिकली टेक द मैक्सिमम ऑफ चाइल्ड ऑफ आई, जो कि इसका करंट स्कोर है, and its final contribution, which will be basically equal to the score of its parent, the score of its parent plus its current score, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा। एंड इन दिस वे यू कैन कीप ऑन, you can keep on going forward, you can keep on going forward and you will be able to get the maximum score for each node। तो कुछ नहीं करना है, दो डीएफएस लगाने हैं। पहला डीएफएस बॉटम टू टॉप चलेगा, जो कि बेसिकली हर एक नोड का नेट स्कोर निकालेगा। अगेन, अगर नेट स्कोर जो है किसी भी नोड का वो नेगेटिव है, देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स पेरेंट। इफ इट्स पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वंस वी आर डन विद दिस, हमारे पास क्या है बेसिकली, हमारे पास रूट नोड का फाइनल आंसर मिल चुका होगा। बाकी नोड्स के लिए फाइनल आंसर हमें भी ढूंढना पड़ेगा। बाय, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उनके चाइल्ड का इफेक्ट उन पे देखा है, उनके सिबलिंग्स और उनके पेरेंट का इफेक्ट अभी हमने नहीं देखा है, राइट? वो हमने नहीं देखा है, तो इसीलिए अब हम एक और डीएफएस लगाएंगे विच विल वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगेन सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉमन सेंस है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तब हमें किसी भी नोड में जस्ट पेरेंट का इफेक्ट देखना है। वाई? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम पिछला डीएफएस लगाया था, देन फॉर कैलकुलेटिंग द नेट इफेक्ट ऑन द पेरेंट, हमने सारे सिबलिंग्स का स्कोर ऐड किया था, राइट? जितने भी नेट पॉजिटिव स्कोर वाले सिबलिंग्स थे, हमने उन सबको ऐड किया था। इसका मतलब अब जब हम पेरेंट से चाइल्ड पे आएंगे ना, तो उस पेरेंट में उसके बाकी सिबलिंग्स का इफेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई वो एक साथ कवर हो जाता है। ठीक है, एंड इन दिस वे वी गो डाउन टुवर्ड्स द फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और देखते हैं, नेट स्कोर चेक करते हैं। अगर नेट स्कोर पॉजिटिव है, दिस मींस कि दिस चाइल्ड मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स पेरेंट। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉमन सेंस है। तो उस केस में वी टेक द मैक्सिमम ऑफ आइदर जो भी उसका करंट स्कोर है, कॉमा वट एवर द मैक्सिमम स्कोर ऑफ पेरेंट। ठीक है, जो कि ऊपर से उसको मिला होगा, राइट? दैट इज वन थिंग। और इन केस अगर नेट स्कोर नेगेटिव है, देन इट मींस कि दिस चाइल्ड मस्ट नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल आंसर, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेगेटिव था तो उसको हमने नहीं लिया होगा। इसके लिए उसका नेट कंट्रीब्यूशन हमें ऐड करना पड़ेगा उसके पेरेंट में, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन पहले ऐड नहीं हुआ था। ठीक है, नाउ सिंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स नेट कंट्रीब्यूशन, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी उसमें ऐड होना चाहिए। दैट इज वाई वी विल जस्ट ऐड पी ऑफ आई प्लस चाइल्ड ऑफ आई, एंड दिस इज ऑल। दिस इज ऑल, बस आपको इतना ही करना था। इसके बाद जो भी आपका फाइनल स्कोर आ रहा होगा, बस आप रिटर्न कर दोगे। सिंपल डीएफएस, सिंपल डीएफएस, आपने दो बार डीएफएस लगाया, टू डीएफएस बी यूज्ड। फर्स्ट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, this bottom to top basically covers effect of child on parent, right? Effect of child on parent. And this top to bottom basically calculates effect of parent, ancestors, you can say, and siblings। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी बात है, सिंपल दो डीएफएस लगा, इट विल बी ऑर्डर एन द नंबर ऑफ नोड्स, राइट? नंबर ऑफ वी प्लस ई बेसिकली, तो ऑर्डर एन कहेंगे। एंड द स्पेस विल ऑल्सो बी ऑर्डर एन, क्योंकि हम बस ग्राफ बना रहे हैं बेसिकली। इफ वी कैन कॉल दिस एज ऑर्डर ई और वट एवर यू वांट। ठीक है, स्पेस भी उसी की टर्म्स में। सो इतना इजी प्रॉब्लम था ये फोर्थ वाला। सीम टू बी अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, बट इट वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स लुक एट द कोड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपना ग्राफ रेडी किया। ग्राफ रेडी करने के बाद हमने एक स्क्वायर एरे बनाया, एंड देन वी कॉल द फर्स्ट डीएफएस। फर्स्ट डीएफएस में कॉल किया, जो कि ये वाला फंक्शन है, राइट? इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, आई होप ये दिख रहा होगा, राइट? अब दिख रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करोगे? चेक करोगे कि पेरेंट के बराबर तो नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात, दैट इज गोइंग टू बी अ लूप। देन यू गेट द स्कोर ऑफ द चाइल्ड। इफ द स्कोर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट पॉजिटिव, तभी उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करना, नहीं तो उसका कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा, राइट?
तो हमने सब सारे चिल्ड्रन का स्कोर, अपना चिल्ड्रन का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। देन वी जस्ट ऐड, क्योंकि जो हमारा करंट नोड है वो भी +1 - 1 होगा, तो उससे हम स्कोर को अपडेट करेंगे। एंड देन वी रिटर्न द स्कोर। इन दिस वे विल बी बेसिकली मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, राइट। ये पहले अपने सबसे नीचे वाले जो लोएस्ट चाइल्ड है वहां तक जाएंगे, फिर हम वापस उल्टा आएंगे अपने स्कोर को कैलकुलेट करते हुए। इन दिस वे विल बी एबल टू डू इट, राइट। दिस इज द फर्स्ट डीएफएस। सेकंड डीएफएस इज दिस, जो कि हम फिर से वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, जी स्कोर एंड जीरो, क्योंकि हमने नेट स्कोर ऑलरेडी निकाल लिया है। तो हमें हमारे पास क्या करना है, इफ p इज नॉट इक्वल टू -1, बेसिकली अगर p -1 है, इट मींस दैट योर नोड इज बेसिकली जीरो, और जो भी रूट है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं रूट की जगह कोई और नोड ले लूँ, कोई भी और नोड ले लूँ, ठीक है, अभी मैंने जीरो लिया हुआ था, बाय डिफॉल्ट मैंने अपने रूट को जीरो माना है। सो एज आई सेड कि रूट का चॉइस इतना मैटर नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर n - 1 भी लगा दूँ ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द आंसर विल स्टिल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे देख लो, मैं भी करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इफ p इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब हमारा पेरेंट नोड, हमारा ये रूट नोड नहीं है, रूट नोड का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देन वी चेक इफ द नेट स्कोर ऑफ द करंट करंट एलिमेंट, करंट नोड इज, अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने अपने पेरेंट पे कंट्रीब्यूट किया होगा। देन वी बेसिकली टेक द मैक्सिमम बिटवीन इट्स करंट स्कोर एंड द पेरेंट स्कोर। एंड इफ दिस नेट स्कोर वुड हैव बीन नेगेटिव, तो वो क्या होगा, उसका करंट स्कोर कॉमा उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ ऐड करके एसयू प्लस चाइल्ड ऑफ, जो हमने जैसे बताया था, ये चाइल्ड वाला पार्ट है, ये उसके पेरेंट वाला पार्ट है। और फिर कुछ नहीं, बस डीएफएस कॉल कर दो फिर से डीएफएस 2 को, और बस खत्म। दिस इज हाउ वी बेसिकली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब एज आई सेड कि मैं n - 1 करके भी दिखा देता हूँ। द चॉइस ऑफ बेसिकली रूट डज नॉट अफेक्ट्स। ठीक है, इसको भी रन करके दिखा देता हूँ मैं। क्या हो गया, ओ ओके, यहाँ पर करते हैं क्या, n - 1, n - 1, पता नहीं कहाँ से कहाँ क्लिक हो जाता है चीजें। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस वन। आंसर सेम आएगा, अगर मैं सबमिट पे भी क्लिक कर दूं, तब भी देखो दिस विल कम एज एक्सेप्टेड। So you can see the choice of root does not matter actually in this question. So yeah, with this we come to an end of the contest discussion. So I hope you liked it. I hope you understood all the problems, understood the solution of all the problems. ठीक है, do like the video, ठीक है, like करो यार, likes बहुत कम होते हैं जनरली। Do comment, drop your suggestions, drop your comments, be constructive in your criticism। बताओ what we can improve, what I can add, what I can remove, what other things should I cover, right? And if you like the way of explaining, please do comment. Your comments act as a boost to my, to work in this direction, right? So drop a like, drop your comments, share करो अपने friends में, share it with, also drop your solutions कि आपने क्या approach लगाया था, if let's say कोई और other approach भी हो जो कि अच्छी हो, right? So drop that as well, and yeah, share it with your friends and peers। subscribe करो यार, okay, subscribe, since now we are also are talking about the merge part, so it's better कि उसके direction में काम करना शुरू करें, because we are still have a very long way to go, we only have around 460 subscribers, so we need to reach 10,000 subs, so उसके लिए we have to work a lot, बहुत बड़ा बनना पड़ेगा इसके लिए, right? That is why it's my request कि अगर if someone is seeing this video for the first time, do subscribe and do press the bell icon so that you never miss an update from our side, and follow our, join our telegram channel or join our whatsapp community where you can directly get updates। अगर यूट्यूब से नहीं भी आ रहे तब भी वहां पर डायरेक्टली चीजें पोस्ट होती हैं। एट द सेम टाइम follow us on our insta page, our official insta page, which is basically the It's Code Time official insta page, where we also drop puzzles along with these video solutions, we also drop puzzles। उनके solution video यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी आते हैं, right? So follow that page। You can follow me on LinkedIn as well, and all those links will be in the description। ठीक है, WhatsApp community channel, Telegram channel, and the Insta page channel, and the LinkedIn channel, you'll find it, and you'll find it in the description itself। And yeah, with this we come to the end of the video। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। दिस अमित शुक्ला साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, ग्राइंड करते रहो, कर दबड़ा दो।